when we humans, okay, when we humans do the automation, so there are still human errors in that. In the test cases we execute when we do it manually, so obviously the reliability increases. So this is why we the automations come in place. And when we need to do it, one of the most asked questions is why automation is when it is needed. So automation is never needed on the projects where there are small projects, like the projects can range from 3 to 6 months. There are a set of modules, they have been developed, and then the product is finished and go. We need automation in larger projects and products where the product is evolving and evolving, and it can take up to 2 to 3 years. Modules आते रहते हैं, product evolve होता रहता है, तो obviously हम हर दफा जो है वो पुरानी फंक्शनैलिटी को टेस्ट नहीं कर सकते. तो जो प्रोजेक्ट्स बड़े होते हैं, जिनकी रिपीटेड फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी होती है, where we do the automation. Okay, so we have different type of automation frameworks, as we have different frameworks for development, as well as we have different types of automation frameworks. There are somewhat like 5 to 6 automation frameworks, but we will discuss only 3 here, which are the most popular. Okay, automation framework hota kya hai? Set of guidelines and rules to design test cases, combination of practices and tools. It helps QA professional to test more efficiently. Let's come to types of frameworks. So first is linear. So linear में क्या होता है? We have tools for record and play. So we just download the tool, we set it on a recording, we record our strips, we record our steps, and then we play it. When जब automation start हुआ था, तब the most famous was Selenium, Selenium IDE, which we download, and we record our scripts and play them. But since we cannot add in our programming or our checkpoints, sleep, इस तरह की कोई चीज हम खुद नहीं वो कर सकते थे, and there are some hindrances in that, तो obsolete होता गया. Still there are some use, you can use them. कुछ tools अभी भी हैं, you can use them, but it's good के linear जो है वो ना use किया जाए. Then comes the modular. Modular में what we do is we break the application in modules, and test scripts are created for each module. So for example, we have a project इसमें login है, एक forgot password है, एक reset password है, एक जो है वो add to cart का module है. So we break those modules, and then we break down the application into different modules, and then we create test cases for each module, and then we combine all those modules, and then a larger set of test cases is executed. And this is foremost the one of the famous framework that has been developed nowadays. And then we have data driven test. अच्छा, data driven में हमारे पास कुछ projects होते हैं जिसमें हमें चाहिए होता है बहुत सारा data के ऊपर test करना. In that case we use the data driven framework approach. We use the same features for different data. And for data we mean we have larger, we have a good amount of data, and we use them in as an input script, as Excel sheets, CSV files, and things like that. Acha. So what are the pros and cons of automation? Obviously, there are some pros and cons of everything. So we have some pros and cons of automation as well. The pros are it's time saving, as I told earlier, fast operations, human errors reduce हो जाते हैं, cost saving. The cons are कि they are very inflexible. For example, अगर आपका एक test case भी change हो जाता है या कोई गलती हो जाती है, तो it will have a great impact on the project. Investment cost in terms of that every the tool is not free, plus हमें लोगों को train करना पड़ता है, तो obviously investment cost इस पे आती है. Increased consequences of errors in terms, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि एक छोटा सा error जो है वो पूरे project को हिला के रख सकता है. तो these are the cons. अच्छा, यहाँ तक if anyone have
anyone have any confusions, clarifications, you can ask them, क्योंकि उसके बाद फिर हम जो है ना अपनी actual Selenium के ऊपर आ जाएंगे, Selenium with Maven पे. तो इधर तक everything is clear, I hope so. नहीं है तो फिर people can ask me questions and I will answer them, and then we will go to Selenium part. अच्छा जी, थ्योरी के हवाले से क्वेश्चंस आना शुरू हो रहे हैं और थ्योरी के लिए हम 10 मिनट्स का टाइम रखते हैं, 5 to 10 मिनट्स के जो आपके क्वेश्चंस हैं स्पीकर के मुझे चैट में बताते हैं, आई विल कन्वे टू द स्पीकर्स. और इसके साथ ही हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है मोहम्मद अरसलान की तरफ से. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. वो कहते हैं कि ऑटोमेशन इज सिमिलर विथ आरपीए. I don't know what is RPA, but our guest question to you, Fatma. I am audible, and am I? Yes, you are audible, and your screen is also visible. Is my screen showing to you guys? Yes, Fatma, your screen is visible. So thank you for clarification, Arsalan. Automation is similar with RPA. RPA is robotic process automation. Guys, let's wait. And once again, I guess there is a problem with some connectivity with our host. Let me contact her on her cell phone and see what's wrong. Okay, Ji, our guest is back. Hello. Ji, Fatma, you are back. Okay. So what was the question? Is RPA? Okay. So not really, because असल में होता ही है कि हम यहाँ पे ऑटोमेशन में हम चाहते हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो, तो व्हाट वी डू इज हम ह्यूमंस को रिप्लेस कर देते हैं तो रोबोट से. तो it's not really very near to automation, but yes, you can say to an extent. Okay, Ji, we got the answer of our first question. Any other question from the participants just regarding the theory? We are moving to the second phase of this workshop, and our guest will let you know the performance. It's our pleasure, Assalam. If there is no more question, then I guess we should not waste our time and move to the practical hands-on. That's the key of the workshop. Otherwise, it will be a normal webinar. Okay, yeah. Okay, Ji. I don't think any other question is coming from the audience, so I would request our guest, Fatma, you may move ahead towards the second session. Please share your screen. Okay. Is my screen visible? Okay. Not yet. Okay, let me show. Okay, is it yes, it is visible now. Visible now? Okay. Okay. So first we discuss about what is a Selenium suite. It's not, I don't know, it's stuck. The screen is okay. Okay, let's we should start from here. What's Selenium suite? So Selenium suite is based on a Selenium IDE, RC, WebDriver, and Selenium Grid. So when I talked about the remote, the record and play thing, that where Selenium IDE works.
but the thing is, okay, but Selenium IDE has some limitations. So we can install Selenium IDE, but it only supports Firefox, and we cannot do conditional operation on it. As I already told you that we can only record and play. तो वो जो रिकॉर्ड एंड प्ले वाला पार्ट है वो उतना ही करेगा जितना आपने रिकॉर्ड एंड प्ले किया होगा. एंड एज आई अर्लियर सेट के कुछ लिमिटेशंस हैं. तो Selenium IDE में वन ऑफ द मोस्ट लिमिटेशन इसके वो मोडाल पॉपअप्स है ना आपके, उनको इट कैन नॉट हैंडल दैट. तो उसके लिए वी हैव टू ऐड सम कमांड्स लाइक वेट, स्लीप, और वी उधर जो है वो हमें थोड़े से मैनुअल ऑपरेशंस करने पड़ जाते हैं. So then Selenium, the concept of Selenium IDE went backwards, and then Selenium RC came. Selenium RC is known as Selenium Remote Control, and remote control, as the name describes, it is done on a server. So कोई direct browser interaction नहीं थी उसमें. बहुत slow execution थी because obviously वो किसी server के साथ interact करता था. तो obviously ये भी obsolete होता गया. And the most famous, which is now in days, is Selenium WebDriver. इसके अंदर we initiate a WebDriver, which I will tell you in our slides. इसमें हम जो है वो direct browser से interaction करवाते हैं. It can support all the browsers. There's no dedicated service. It can offer perform the operations on your computer and very fast execution at it's on your मतलब it doesn't interact with an server, तो बहुत fast execution हो जाती है. And then the Selenium Grid जो है basically इतना यूज में नहीं है, but ये यूज तब आता है जब हमें multiple browsers environments में जो है वो अपनी स्क्रिप्ट्स जो है वो रन करनी होती हैं. बहुत सारे virtual users, browsers, so that we have used Selenium Grid, and it's a mix of Selenium RC and Selenium WebDriver. So Selenium WebDriver use में है, तो we will talk about the Selenium WebDriver. अच्छा, ये जो Selenium WebDriver है ये आपका actions perform करता है web elements में. मैं अब जब आऊंगी आगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि what are basically web elements and how do we perform actions. बहुत सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है. यू कैन चूज एनी लैंग्वेज यू वांट, मतलब जिसमें आपको आती है आप उसमें कर लें. ठीक है. इसका फ्रेमवर्क मैं थोड़ा सा, अच्छा इसमें जो है ना हमारे पास फ्रेमवर्क्स, अच्छा ये जो Selenium WebDriver है इट्स जस्ट अ वेब ड्राइवर टू परफॉर्म टेस्टिंग. इसके अंदर टेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास कुछ और फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं जो हम इंटीग्रेट करते हैं. TestNG, JUnit फॉर एग्जांपल इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं टू फॉर द टेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग के पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं और हाउ मेनी केसेस आर पास्ड, फेल, इस तरह की चीजें. अच्छा, होता ये है कि इसका the architecture is like ये हम we have the code here, Python, C#, Perl, Java, etc. It uses the Selenium client libraries. Then it interacts with the JSON write protocol. Write protocol is जो भी हमें data भेजना होता है. जो data we send they interact with a driver. अभी हम देखेंगे कि हम drivers कैसे initiate करते हैं. And then those drivers interact with the real browsers. This is a simple execution of web driver architecture है. अच्छा, सबसे पहले ना अब मैं आप लोगों को ये अपनी स्क्रीन शेयर करके ना दिखाती रहती हूँ कि हमने सबसे पहले करना क्या है. Before installing IntelliJ IDE, क्योंकि मैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रही हूँ दैट आई एम यूजिंग जावा, तो जावा के लिए ना हमारे पास सबसे पहले जावा JDK इंस्टॉल होना चाहिए. ठीक है. तो जावा JDK इंस्टॉल करने के लिए जो है वो आप सिंपल आप गूगल पे जाएंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे. आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी. ओके, चलो इधर ही स्टार्ट करते हैं. योर स्क्रीन इज विजिबल, बट हम सब आपकी स्लाइड्स देख रहे हैं. स्लाइड्स देखनी है या मैं करके खुद दिखाऊं? तो इजंट इट गुड कि मैं खुद एक एक चीज करके दिखाती जाऊं आप लोगों को? बेहतर रहेगा आप स्लाइड हाइड कर दें इस वक्त, क्योंकि आपकी स्लाइड विजिबल है. हमें अच्छा, आपका स्लाइड विजिबल है. ओके 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 ओके, लेट मी शो माय स्क्रीन.
Okay, we are looking at your browser. अच्छा, इसमें से आप लोगों को जो भी feasible लग रहा है, बेसिकली ये हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास पहले से डाउनलोड, मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करी। ये जब व्हेन वी आर डन डाउनलोडिंग विद दैट, तो हमारे पास हमें एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट करने होते हैं जावा जेडीके के। तो हम वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वी गो टू एडवांस प्रॉपर्टीज, ठीक है। ओ सॉरी, यार इट्स नॉट ओपनिंग, तो मैं आप लोगों को ना वहां से करके दिखाती हूँ कंट्रोल पैनल से। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। यार आई डोंट नो, ओके दिस इज अच्छा। ये हमारे पास एडवांस सिस्टम प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें हम लोग एनवायरमेंटल वेरिएबल्स पे जाते हैं। एनवायरमेंटल वेरिएबल्स पे ये देखें, अब जावा होम जो है मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है। अब हम करते क्या है कि मैंने यहाँ पे मैं न्यू करूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं सिस्टम वेरिएबल नेम दूंगी जावा अंडरस्कोर होम, ठीक है। और इधर जहाँ पे हमने वो डाउनलोड किया है ना, वहां से उसका पाथ उठाएंगे और यहाँ पे वो वैल्यू कर देंगे। मैं आप लोगों को यहाँ से करके भी दिखाती हूँ। Fatma, sorry to interrupt. We are just looking at your control panel screen, not the pop-up you are talking about. Okay, let me share, let me see if I can, if I'm able to share it again. या आपकी स्क्रीन हैंग हो गई है? Because we are नहीं not. नहीं, अब विजिबल है? नहीं अभी तक विजिबल नहीं है। आप स्क्रीन अनशेयर करके एक बार स्टॉप करके फिर से शेयरिंग ऑन करें। Stop share, okay. Let me know when it's visible. हाँ हम आपकी अब स्क्रीन देख रहे हैं। आप लोग ने, मैं दोबारा से प्रोसेस रिपीट करूं या यहीं से स्टार्ट कर लूं, अगर जिसने नहीं देखा? मेरे ख्याल से किसी ने नहीं देखा क्योंकि स्क्रीन स्टक हो गई थी, तो आप एक बार अच्छा, फिर से ओके बता दें तो बेहतर होगा ओके। ऑडियंस के लिए। अच्छा, इसमें जो है ना हम क्या करते हैं, एडवांस सिस्टम प्रॉपर्टीज सेटिंग्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एनवायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं। मेक श्योर कि हमने जावा पहले इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम न्यू करेंगे, ठीक है। वेरिएबल नेम देंगे जावा अंडरस्कोर होम, ठीक है। इसमें वेरिएबल वैल्यू में जहाँ पे हमने इंस्टॉलेशन की थी ना, हम वहां पे देंगे। मैं आप लोगों को एक दफा करके भी दिखा देती हूँ। प्रोग्राम फाइल्स, ये देखें, ये यहाँ पे मेरे पास जावा पड़ा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास जेडीके पड़ा हुआ है। इसका मैं ये पाथ मैं यहाँ से कॉपी करूंगी सारा, कंट्रोल सी करके, और यहाँ पे मैं अपनी प्रॉपर्टीज पे पेस्ट कर दूंगी, ओके कर दूंगी, तो मेरा ये जावा होम का वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने ये करना है, मेरे पास पहले से हुआ हुआ है। ये देखिए मेरा जावा होम का वेरिएबल सिस्टम वेरिएबल बना हुआ है। उसके बाद मैं पाथ पे जाऊंगी। पाथ पे हमने ये परसेंटेज जावा होम परसेंटेज एक न्यू करके न्यू करूंगी मैं यहाँ पे। ये दो मैंने सिस्टम वेरिएबल्स और मैंने पाथ वेरिएबल्स और बनाते हैं, एक ये और एक जावा होम परसेंटेज और बिन, ठीक है।
ये हमारा सेटअप हो जाएगा जावा का एनवायरनमेंट, ठीक है। अभी तक इसका कोई ताल्लुक नहीं है सेलेनियम से, ये हमें कोई भी जावा डेवलपमेंट करनी होगी, हमें ये वाली चीज इंप्लीमेंट करनी होगी, ठीक है। इतना समझ आ गया। मेरे पास एनवायरनमेंट में वेरिएबल्स सारे सेटअप हुए थे, अप्लाई आपने यहाँ से करना है, ओके करना है, आपका जो है वो जावा का ये सब कुछ रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इंटेलिजे जे, अच्छा मैं जावा के लिए अभी जो आईडी यूज करी हूँ इंटेलिजे जे यूज करी हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज इक्लिप्स एज वेल। इक्लिप्स जो है वो मुझे इतना अपील नहीं करता क्योंकि इट्स वेरी हैवी टूल और दैट्स एन ओल्ड टूल, तो वो मैं इसलिए यूज नहीं करती, आई यूज इंटेलिजे। तो इंटेलिजे भी आपने बस डाउनलोड करना है, डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पे जाना है जेट ब्रेन्स के ऊपर, जेट ब्रेन्स के ऊपर डाउनलोड द कम्युनिटी वर्जन एज इट्स फ्री। अल्टीमेट में वी हैव टू पे फ्री 30 डे ट्रायल है एंड इट ये इसके पास ये वाली सारी जो है ना वो इसको रिमोट डेवलपमेंट को, डेटा टूल्स को, सबको जो है वो करता है, क्या कहते हैं यार, आई डोंट नो है, और सपोर्ट करता है। और ये जो है ना इसमें कम्युनिटी वर्जन के पर हम लोग के पास इतनी सपोर्टिव चीजें नहीं होती, लेकिन काम चल जाता है क्योंकि हम लोग लाइब्रेरीज वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं। और तो डाउनलोड इसको करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसकी एक्टिव फाइल चलानी है तो आपके पास इंटेलिजे जे इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा उसके बाद जो है ना हमने करना है मेवन इंस्टॉल, बिकॉज आई एम यूजिंग मेवन विद इंटेलिजे जे, ठीक है। ये हमने आप इंस्टॉल कर लेंगे जब, तो फिर आपके पास ये इस तरह का इंटेलिजे की आईडी इस तरह से होगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने मेवन इंस्टॉल करना है। मेवन बिल्कुल उसी तरह इंस्टॉल होगा जैसे मैंने जावा की अभी आप लोगों को बताई थी ना, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह आपने जावा इधर से जावा मेवन इंस्टॉल करना है 32 बिट बेसिकली, क्योंकि वो 64 पे भी इंस्टॉल हो जाता है। मेवन का फोल्डर जहाँ पे आपने उसका कॉपी पाथ को कॉपी करना है, इसी तरह सिस्टम एडवांस सेटिंग में जाना है, मेवन होम का वेरिएबल बनाना है और उसमें जो है ना वो अपना मेवन होम के अंदर जो जहाँ पे आपने मेवन का फोल्डर डाउनलोड किया है उसका पाथ दे देना है। और पाथ वेरिएबल्स में भी आपने इसी तरह एक मेवन होम करना है क्रिएट और एक मेवन होम बिन करना है, ठीक है। अच्छा अब लेट्स सी के हम लोग की जावा वगैरह सब कुछ इंस्टॉल हो गई है, हम CMD पे जाएंगे। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे वर्जन इसका, आई थिंक सो यही होता है। मैं लेट मी इसका हाँ जावा वर्जन, जावा, आई होप इट रिकग्नाइजेस, नहीं क्योंकि मैंने इसलिए नहीं रिकग्नाइज की क्योंकि ये दिस इज सेंसिटिव ऑन द लोअर एंड अपर केस। हाँ देखो अब जो है ना ये मेरा जावा इंस्टॉल्ड है तो इसने मुझे ये अपना वर्जन वगैरह दे दिया है, ठीक है। हम मतलब अब वी आर श्योर कि वी कैन स्टार्ट आवर टेस्ट केस राइटिंग। ओके सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटेलिजे हमने सेटअप कर लिया, जावा सेटअप कर लिया, मेवन इंस्टॉल कर लिया। जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी देन यू विल ओपन योर जावा इंटेलिजे IDE, ठीक है। इसमें आपने न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, यू विल क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट में यू हैव टू build system maven, you have to select this build system। JDK ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो यहाँ से आपका जो है JDK वर्जन ना उठा लेगा, जो भी आपके पास इंस्टॉल है वहां से उठा लेगा, आपने क्रिएट कर देना है। अच्छा नेम में मेक श्योर दैट देयर आर नो स्पेसेस, जैसे मैंने अभी एक प्रोजेक्ट ये बनाया माय टेस्ट प्रोजेक्ट सी, इसमें देयर आर नो स्पेसेस, तो व्हेन यू क्रिएटेड अ न्यू प्रोजेक्ट विल बी क्रिएटेड, ठीक है। जब आप मेवन इंस्टॉल करेंगे ना तो इट विल गिव यू अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, .id है, SRC में मेन है और टेस्ट है, ठीक है। ये कुछ नहीं होता, बस ये समझ लें टेस्ट तक, ये आपका एक स्ट्रक्चर वो आपको खड़ा करके दे देता है फॉर राइटिंग द टेस्ट केसेस। इसमें जो है ना फिर टेस्ट में जाकर आपने जावा में जाकर आपने राइट क्लिक करना है, न्यू करना है, एक पैकेज क्लास बनानी है, ठीक है। पैकेज का नाम हम कोई भी दे सकते हैं, मैंने माय टेस्ट प्रोजेक्ट दिया था। और उसके अंदर आपने क्लास बनानी है मेन जावा क्लास, उसको आपने दे देना है मेन का नाम,
ठीक है, यही सारे स्टेप्स जो हैं वो मैंने इसमें ये मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है कि व्हाट इज मेवन। फॉर्म एक्सएमएल का मैं भी बताती हूँ आपको, डिपेंडेंसीज का भी बताती हूँ आपको। ओके, यहाँ से ठीक है, ये आपका एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो है ना, जब आप मेवन का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये आपको ना एक फॉर्म एक्सएमएल फाइल बना देता है। व्हाट इज अ फॉर्म एक्सएमएल फाइल? फॉर्म एक्सएमएल फाइल के पास आपकी सारी प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज होती हैं, सारी लाइब्रेरीज होती हैं। तो आपको जो भी डिपेंडेंसी डालनी है वो आप किस तरह से डालेंगे डिपेंडेंसी का, मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। क्योंकि देखो मैं अभी यूज कर रही हूँ मेवन, तो मैंने यहाँ पे भी मेवन की डिपेंडेंसी डाली है। डालनी कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैं यहाँ से कोड अपना रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, अभी देखें हमारे पास कोई ये फॉर्म एक्सएमएल की फाइल आपको इस तरह से शो होगी। डिपेंडेंसी का कोड डालने के लिए मैं ये ऑन करूंगी। देखिए मेरे पास ये खुद ही से डिपेंडेंसीज का टैग ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मुझे मेवन की डिपेंडेंसी डालनी है। तो व्हाट आई विल डू, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डिपेंडेंसी। ओके, सिलेनियम मेवन जावा डिपेंडेंसी अब मैं आप लोगों को इसमें डाल के दिखाती हूँ। तो अगेन आई विल गो टू द क्रोम। क्योंकि आई एम यूजिंग मेवन, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सिलेनियम मेवन जावा डिपेंडेंसी। ठीक है, एमवीएन रिपोजिटरी को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें से यू हैव टू सेलेक्ट दैट डिपेंडेंसी विच हैव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ यूजेज। सो वी हैव दिस 3.14 1.59 डिपेंडेंसी, आई थिंक दैट हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ यूजेज। तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करूंगी, यस दिस इज द, इसमें ही आपके पास कोड होता है, आपने इसको बस कॉपी पेस्ट करना है। मेक श्योर कि बस डिपेंडेंसी का टैग हो आपके पास, नहीं है तो फिर आप इसको खुद लगा लीजिएगा। ओके, फॉर्म एक्सएमएल में गए, यहाँ पे डिपेंडेंसीज के टैब के अंदर, बिकॉज आई एम डिपेंडेंट ऑन मेवन राइट नाउ, तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, अगर इसको कोई एरर्स देने होंगे तो इट विल मतलब ये रेड हाईलाइट कर देगा। और ये जब आप कोई डिपेंडेंसी ऐड करते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि डिपेंडेंसीज, ये आपको ना कुछ ये यहाँ पे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज जो है ना वो क्रिएट करके दे देगा। फॉर नाउ अभी ये मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं करके दे रहा, लाइब्रेरीज ऐड करके नहीं दे रहा, लेकिन इफ आई शो यू माई डिफरेंट प्रोजेक्ट, तो इसमें से मुझे बहुत सारी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, ये देखो ये मेवन की सारी लाइब्रेरीज मेरे पास ऐड हो गई हैं। क्योंकि इसके फॉर्म एक्सएमएल में भी मैंने यही वाली देखें डिपेंडेंसी डाली थी, लेकिन फॉर नाउ ये अभी मेरे इस वाले प्रोजेक्ट के लिए नहीं उठा रहे हैं लाइब्रेरीज को। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन। ओके, अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप कि यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा सारा कि किस तरह से हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, उसको किस तरह से हमने डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, व्हाट इज फॉर्म एक्सएमएल। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग का, हम यहाँ पे बात करेंगे क्रोम ड्राइवर की। यू कैन क्रिएट एनी वेब ड्राइवर, यू कैन क्रिएट अ वेब ड्राइवर ऑफ फायरफॉक्स, यू कैन क्रिएट अ वेब ड्राइवर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज, एनी वेब ब्राउजर यू वांट। यहाँ पे क्योंकि मोस्ट पॉपुलरली क्रोम यूज होता है, तो आई विल टेक यू थ्रू द क्रोम। क्रोम के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज you need to first see the version of the Chrome। तो आप यहाँ पे जाएंगे, हेल्प में जाएंगे, अबाउट गूगल क्रोम करेंगे, and you have to see okay, it's not updating। I hope so it doesn't update। anyways, the version is 101.0। ठीक है, वर्जन इसलिए देखना जरूरी था क्योंकि हमें क्रोम ड्राइवर बेसिकली इंस्टॉल करना होता है, तो हम हम वही वाला क्रोम ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे गूगल से जो हमारे पास वर्जन होगा, क्योंकि अगर वर्जनिंग में कोई डिफरेंस आ जाता है तो फिर दैट डजंट वर्क। अच्छा, 101 वर्जन था मेरे पास। अब मैं यहाँ पे डाउनलोड करूंगी, डाउनलोड क्रोम वेब ड्राइवर। ठीक है, क्रोम ड्राइवर द क्रोमियम का लिंक आ जाएगा। अब मेरे पास देखिए मैंने था 101, इफ यू आर यूजिंग वर्जन 101, तो ये मेरा वर्जन ये था 101, तो आई विल यूज दिस।
ठीक है, इसमें मैं ये क्रोम ड्राइवर Win32 जिप इंस्टॉल कर लूंगी, मेरे पास पहले से इंस्टॉल है इसलिए मैं नहीं कर रही। जिप है, जिप को आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। लोकेशन बस मेक श्योर कि लोकेशन आपको पता हो कि आपने कहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है। ओके, वन यू हैव एक्सट्रैक्टेड इट, तो हम क्या करते हैं उसके बाद ये मेन में हम आते हैं। ठीक है, मेन में जो है हम इसी तरह ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा। ठीक है, अच्छा अब क्या करना होता है हमें, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, ये वेब ड्राइवर को इनिशिएट करने के लिए ना हमें इसको पहले सेट करना पड़ता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, अच्छा इसमें वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर। ठीक है, और कॉमा में करके क्रोम ड्राइवर डॉट एक्सी, क्योंकि मैंने डाउनलोड की हुई थी तो आई विल CHR और क्रोम ड्राइवर डॉट एक्सी लिख दूंगी। ठीक है, सही है। ये हम लोग का क्या करेगा, वेब ड्राइवर की जो प्रॉपर्टी है वो सेट कर देगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक न्यू वेब ड्राइवर क्रिएट करना है। ठीक है, तो वेब ड्राइवर की हमारे पास अगर ये मेरे पास मेवन रिपोजिटरीज मेवन की वो ऐड होती ना, तो ये यहाँ पे ये इसको लोकेट कर लेता, लेकिन अभी मेरे पास ये इंपोर्ट नहीं हो रही है वाली लाइब्रेरीज, तो इसको लोकेट नहीं कर रहा। लेकिन ये मैं आपको अपने दूसरे प्रोजेक्ट में दिखा देती हूँ। अच्छा सही है, वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर करेंगे तो आपका वेब ड्राइवर इनिशिएट हो जाएगा। और ड्राइवर डॉट गेट करके आपने जो भी लिंक आपको खोलना है, जैसे फॉर एग्जांपल google.com, तो आप वो इसमें URL डाल देंगे तो आपका वो ड्राइवर इनिशिएट होके ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको अपने दूसरे प्रोजेक्ट पे लेकर जाती हूँ, और ये मेरा मेन का कोड है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी देखिए यहाँ पे भी मैंने बिल्कुल यही किया हुआ है, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट एक्सी, एक न्यू मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है न्यू क्रोम ड्राइवर का, ड्राइवर डॉट गेट में मैंने अपना ये वाला लिंक डाला है। ठीक है, तो अब बस ये करेगा क्या, मैं आपको बताती हूँ, मैं कमेंट कर दूं थोड़ा सा कोड। ओके, इसमें एक क्विट का भी था, ये मैं क्विट भी अभी कर देती हूँ, बताती हूँ क्विट क्या करता है। पहले हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ से आपने जाना है, रन करना है मेन। ये देखिए यहाँ आपका जो है ना सारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे अब इसको ये रन करेगा कोई। ये देखिए इसने मेरा ये वेब ब्राउजर खोल दिया है, वेब ब्राउजर पे ये जो मैंने साइट वेबसाइट वहां पे दी थी ना, उसको देखें इन्होंने ये ओपन कर दिया मेरी। ये मेरा फर्स्ट टेस्ट केस था, और ये मेरे ख्याल में आप सब कर सकते हैं। एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू implement something like this and send it to me. ठीक है, ये मेरी वेबसाइट थी, ये मैंने जो है वो ओपन कर दी है। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं। मैं ना आप लोगों को बताती हूँ व्हाट आर वेब एलिमेंट्स, और हम उनको कैसे लोकेट कर सकते हैं, और कैसे जो है वो अपनी फंक्शनैलिटी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो है हमारे पास मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा मैंने बंद कर दिया, लेट्स रन इट अगेन। अच्छा अब देखिए मेरे पास जो है ना एक ये स्क्रीन है, स्क्रीन में मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं, लॉग इन, क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल, ईमेल, पासवर्ड, सबमिट का बटन, फॉरगॉट पासवर्ड, दीज आर नोन एज वेब एलिमेंट्स। अब इसमें जो है मुझे मैं इनको किस तरह से यूज कर सकती हूँ, यूज जो है यूजेज का जो ताल्लुक है वो होता है लोकेटर से। We locate these elements in the CSS file and then we use it in our project. तो लोकेटर्स, पहले हम लोकेटर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हम लोकेट किस किस तरह से कर सकते हैं। मैंने आपको वेब ड्राइवर का बता दिया कैसे ओपन होता है।
ये कोड मैंने थोड़ा सा लिखा था, वो जो वहां पे लिखा है ना वो यहीं पे लिखा है, बस driver.get में जो है वो मैंने google.com कर दिया है। अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका है कि आप स्ट्रिंग में कोई स्ट्रिंग बनाएं, बेस यूआरएल मैंने इसका नाम लिख दिया है, इसमें जो है वो आप अपना बेस यूआरएल डाल दें और driver.get में अपना बेस यूआरएल पास करा दें, या इसका तो आप स्ट्रिंग में जो भी नाम रखेंगे वो आप यहाँ पे पास करा दें, तो इन दैट वे भी दैट्स एन ऑल्टरनेटिव वे, क्योंकि प्रोग्रामिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल, आप उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव वेज, तो ये मैंने एक और ऑल्टरनेटिव वे आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। Locators are used for the identification of the correct GUI element on a web page. जैसे मैंने बताया वेब पेज है, they have many elements, text box होता है, बटन होते हैं, प्लेस होल्डर्स होते हैं, उनकी हमें वैल्यू चाहिए होती है। किसी चीज को लोकेट करने के लिए हमें उसकी कोई ना कोई आईडी चाहिए होती है, कोई वैल्यू चाहिए होती है जिससे हम उसको लोकेट कर सकें। देयर वहां पे जो है ना ये सेलेनियम लोकेटर्स जो है वो यूज होते हैं। अब हम इनको किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो वो किसी हम उनको लोकेट कर सकते हैं थ्रू क्लास नेम, थ्रू टैग नेम, थ्रू CSS फाइल, थ्रू नेम, थ्रू ID, थ्रू फिल्टर्स एंड थ्रू XPath. There are various methods of locators. जो बहुत मेन यूज होते हैं वो थ्रू ID होते हैं, थ्रू क्लास नेम होते हैं, थ्रू नेम होते हैं और थ्रू XPath होते हैं। मैं एक एक आप लोगों को यूज करके आगे दिखाती रहूंगी कि किस किस तरह से इनको हम यूज कर सकते हैं। क्लास नेम से देखें, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हम यूजुअली यूज कर रहे होते हैं, क्लास नेम होता है, ID होता है, नेम, टैग नेम, XPath, ठीक है। अच्छा, फॉर यूजिंग लोकेटर्स हम ये बाय का प्रीफिक्स यूज करते हैं, by.id, by.name, by.classname, by.xpath. Excuse me guys, I just need to have some water. Okay. स्क्रीन आई होप सो सबको विजिबल होगी, क्योंकि अब मैं जो आप लोग को दिखाने चाह रही हूँ कि हम लोग किस तरह से लोकेट एलिमेंट्स कैसे लोकेट करेंगे, ठीक है। आप इसका डेवलपर कंसोल खोल लें, ठीक है। उसके बाद आपने एलिमेंट्स पे जाना है, एलिमेंट्स में आपने ये वाला कर्सर उठाना है और जैसे